Good morning students, welcome to my channel Chemistry with DNA. I am Noman Ahmed and today we are going to discuss Arrhenius equation, which is the most important in chemical kinetics. Today we are going to discuss in lecture number 12. This is lecture number 12 and today in lecture number 12 we are going to discuss the most important topic, that is Arrhenius equation. Arrhenius equation. This is the topic, Arrhenius equation. Basically, Arrhenius equation is very important in chemical kinetics because it tells you the relationship of temperature and rate constant. So let's discuss what is Arrhenius equation. Arrhenius equation says that K is equal to, what is K? That is AE minus EA upon RT. This is equation number 1, where we can say that A is Arrhenius constant, or we can say it is before the exponent, so that's why it is also called pre-exponent constant. And EA is activation energy. And where R is gas constant. Why do we call it gas constant? Because its value is 8.314 joule per mole per Kelvin. This value will be used later on in our equation. And the most important thing which we are going to discuss is K. What is basically K? In this equation, K is rate constant. Now T is temperature. So these things are derived, and all these things which are present in equation number 1, where K is the rate constant, A is Arrhenius constant, or it is also called pre-exponent constant. And what is E? E is exponential constant. Which means it is exponential constant, and EA is activation energy. Activation energy means it is the amount of energy which is required to start any chemical reaction. So these are the reaction. Now, taking log on both sides for this equation, let's discuss taking natural log on both sides. इसके दोनों साइड पे नेचुरल लॉग लेंगे तो ये इक्वेशन कैसे बनेगी? पहले तो ये लिख लेते हैं, K इज इक्वल टू AE माइनस EA अपॉन RT. जब हम इसका दोनों साइड पे नेचुरल लॉग लेंगे इसी इक्वेशन का, तो दैट इज ln K इज इक्वल टू ln A into E minus EA by RT. अब यहाँ पे देखना, ln इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी हो रहा है, तो ये जब हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे लॉग की, तो इसमें ये इसके साथ ये प्लस हो जाएगा. सॉरी, ln A प्लस ln E माइनस EA बाय RT. अब आप ln E, मैं आपको एक लॉ बता देता हूँ कि वो क्या है, कि log x a इज इक्वल टू क्या हुआ है, a के इक्वल होता है. तो इसकी जगह हम 1 लगाएंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो हम डायरेक्ट इसी को लिख लेंगे. तो ये ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA बाय RT. This is
equation number 2. This is equation number 2. So let's continue. अब हमारे पास ये जो डेरिवेशन आई है, अब हमने इसको क्या करना है, इसी का हमने, अगर हम दोनों को लॉग, इसको इसी को नेचुरल लॉग को हमने लॉग में कन्वर्ट करना है. टू कन्वर्ट नेचुरल log into log to the base 10, we will multiply ln with 2.303. तो ये कैसे बन जाएगा, 2.303 log to the base 10 के. जब हमने इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को log 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, 2.303 log to the base 10a minus EA divided by RT. ये हमने दोनों को कन्वर्ट कर दिया. अब हमने इस इक्वेशन को, जो कि log to the base क्या है, 2.303 log to the base 10 के इज इक्वल टू, इसको मैं एक और इक्वेशन का नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2, सॉरी दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब इस पूरी इक्वेशन को अगर हम डायरेक्ट 2.303 के बाद अगर इसी 2.3 को मैं इस पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर लूँ, तो ये आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा, ये से कैंसिल होके log to the base 10 k इज इक्वल टू log to the base 10 a माइनस EA बाय RT. और इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 2.303 RT हो जाएगा. हमने इसको यानी इस पूरी इक्वेशन को 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और इसके साथ आ जाएगा 2.3. ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया, 4 आ गई है. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. यानी ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2.33 इसके साथ आ जाएगा. तो ये इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास आ गई है. अब हमने इसी इक्वेशन को हमने क्या करना है, क्योंकि इसमें हमने ये चीज़ देखना है कि k, यहाँ पर k इज टोटली डिपेंडेंट ऑन t. k की वैल्यू बढ़ेगी तो t की वैल्यू भी चेंज होगी, यानी k और t जो है ना ये आपस में डिपेंडेंट है. k एंड t इज टोटली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. मतलब k की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे तो t की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. तो हमारे पास यहाँ दो केसेस आ सकते हैं. कौन कौन से दो केसेस हैं, मैं पूरी इक्वेशन मिटा रहा हूँ. अब हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस. कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2. कंडीशन नंबर 1 क्या, T1 और T2. T1 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, K1 के, और T2 इज इक्वल टू है K2 के. तो हमारे पास दो कंडीशन ये आ सकती है. हम ये कहते हैं कि T1 जो T1 है, हम ये कहते हैं कि T1 इज स्मॉलर देन T2, तो ऑटोमेटिक K1 इज स्मॉलर देन K2. यानी अगर T2 बड़ा है और T1 छोटा है तो सेम K2 बड़ा होगा और K1 छोटा होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि T की वैल्यू इंक्रीज करने से K की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. अब इसी को हमने इक्वेशन में अप्लाई करना है. तो दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आगे जो हम इक्वेशन है तो इस चीज़ को आपने याद रखना कि टोटल 2 कंडीशन में क्या होगा, हम सबसे पहले T1 और K1 को एक इक्वेशन में लिखेंगे, फिर T2 और K2 को लिखेंगे, दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे. तो यहाँ तक
आई होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, हमने दोनों कंडीशन को अप्लाई करना है। दोनों कंडीशन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वही इक्वेशन दोबारा लिखेंगे। नंबर वन, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अगर हम इसी को क्या कर लें, इसको हम K1 कहेंगे तो इसको हम T1 कहेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। और इक्वेशन नंबर टू क्या हो जाएगी, एल एन के टू इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी टू। दिस इज इक्वेशन नंबर टू। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब हमने एक चीज आपने देखा, वी हैव नॉट एडेड द कैटलिस्ट। अगर मैं यहां पे लिख दूं, वी हैव नॉट एडेड द कैटलिस्ट, so it will not change the activation energy। यानी एक्टिवेशन एनर्जी में क्योंकि हमने कैटलिस्ट ऐड नहीं किया तो ये इसमें कोई फर्क नहीं करेगा। अब हमने इक्वेशन नंबर टू को इक्वेशन वन में से माइनस करना है, तो टू को वन में से क्या करना है, माइनस करना है। तो देखो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा एल एन टू एल एन के टू माइनस एल एन के वन, माइनस हो रहा है। अब देखें, ये मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, एल एन ए जब इसमें से माइनस होगा तो ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हम मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ, माइनस ई ए आर टी टू माइनस माइनस ऑफ ई ए आर टी वन। आपको समझ आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, एल एन के टू के वन इज इक्वल टू माइनस ई ए आर टी टू माइनस ई ए आर टी वन। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसी को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तो एल एन के टू के वन ये वाला इज इक्वल टू, अब माइनस ई ए आर टी टू माइनस माइनस प्लस, तो ई ए बाय आर टी वन। अब इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दें, तो ये एल एन के टू के वन इज इक्वल टू ई ए आर टी वन माइनस ई ए आर टी टू। इसको इक्वेशन नंबर कहेंगे 5। इक्वेशन नंबर हो गई है हमारे पास 5। 4 कर दो, 5 कर दो, डजंट मैटर। अब इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हमारे पास इनमें से देखें, इनमें से हमने कॉमन लेना है, तो कॉमन इसमें से क्या आ रहा है, तो एल एन के टू बाई के वन इज इक्वल टू, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, ई ए बाय आर। तो इसमें से 1 बाई टी वन माइनस 1 बाय टी टू, ये कॉमन आ रहा है। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, तो एल एन के टू के वन इज इक्वल टू ई ए बाय आर। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में T1 और T2, अब T1 T2 माइनस T1, यानी ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो T1 T2 माइनस 1 T2, इस तरह T2 से कैंसिल हो जाएगा, तो T1 मल्टीप्लाई बाय 1, इस तरह। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, ये हमारे पास क्या आई है, अब हमने इसको नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करना है किसमें, log टू द बेस 10 में। तो कन्वर्ट नेचुरल लॉग टू log टू द बेस 10। तो उसमें क्या करेंगे हम, इसको 2.3
2.303 log to the base 10 K2 और K1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा EAR T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 T2। अभी 2.303 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी log to the base 10 K2 डिवाइडेड बाय K1 इज इक्वल टू EA और ये क्या आ जाएगा 2.303 R T2 माइनस T1 और T1 माइनस T2। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6 आएगी। आई होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स के K2 और K1 कैसे आ रहा है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ। अब हमने इसी को कन्वर्ट कर लें, K2 को अगर K1 को कन्वर्ट कर लें, क्योंकि इसमें से हमें ये पता चल रहा है K2 क्या है और K1 क्या है। तो अगर हम में से कोई एक ले लें, इनमें से कोई एक इक्वेशन हम ले लें, फर्स्ट हम इसमें से कोई एक इक्वेशन ले लें। सपोज हम इसमें से कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं। कौन सी इक्वेशन ले लेते हैं, फर्स्ट करो हमारे पास एक इक्वेशन है, हमारे पास एक इक्वेशन कौन सी है, यानी अगर हम K इज इक्वल टू, इनमें से अगर हमारे पास 3 किस्म की इक्वेशन आई थी, AE माइनस EA बाय RT, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हमने कौन सा लिया था, नेचुरल लॉग LNK इज इक्वल टू LN, और दूसरा इसी के साथ क्या आया था A माइनस EA बाय RT, तो ये इक्वेशन नंबर 2 आई थी। और इक्वेशन नंबर 3 क्या था, log टू द बेस 10K इज इक्वल टू log टू द 10 बेस 10A माइनस EA बाय 2.303 RT, 2.303 RT, ये क्वेश्चन नंबर 3 आई थी। अब इन तीनों के लिए अगर हमें ग्राफ बनाना पड़े तो एक चीज याद रखना, इन दोनों के लिए स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, और इसके लिए एक्सपोनेंशियल कर्व आएगी। इसकी हम कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल कर्व, एक्सपोनेंशियली कर्व ग्राफ आएगी हमारे पास। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए, यहाँ पर ये जो डेटा है log टू द 10K बेस 10K, ये हमारे पास है y, क्योंकि K और T 1 बाय और T को ही लेना है। तो यहाँ पर ये जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट माइनस EA और 2.3R हमारे पास क्या है, ये माइनस M है, और 1/T आपके पास क्या है, X है। तो ये इक्वेशन आप ग्राफ आप इसका भी ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं। तो अगर हमें ग्राफ बनाना पड़े तो बहुत जरूरी चीज आपने ये देखना है कि y पे आपने क्या लेना है। ये y एक्सिस है और ये आपके पास क्या है, x एक्सिस है। तो y पे आपने log टू द बेस 10K, और दूसरा आपके पास क्या लेना है, 1/T, यानी 1/T, ये रिलेशन लेना है किस पे, x एक्सिस पे। तो 1/T, ये तो आपने बहुत ज़्यादा है। और ये माइनस का मतलब क्या होता है कि इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये log टू द बेस 10A, log टू द बेस 10A। अब ये एक कर्व आ रही है, कर्व का मतलब क्या है कि ये स्लोप जो इसका आएगा, स्लोप वो माइनस EA 2.303 आ रहा है। तो ये भी आपको याद है कि कंसंट्रेशन के साथ साथ देखो, ये माइनस का मतलब, ये माइनस का मतलब क्या है कि ये कर्व डाउनवर्ड जा रही है। और अगर यहाँ पे हम इसके लिए कर्व देखें, तो अगर हम यहाँ पे x और y, x पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x पे हमारे पास इसकी का k है, और दूसरा 1/T है। दोनों में आपने याद रखना कि इसमें भी यहाँ पे k है इसके लिए, और यहाँ पे 1/T है। तो वो एक्सपोनेंशियली कर्व आ रहा है ऐसे, इसको एक्सपोनेंशियली ग्राफ कहते हैं।
क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये तो हमने इसमें ये चीज़ देखनी है कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो हमने इसमें समझना है, वो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर y हमारे पास क्या था, c हमारे पास क्या था, m क्या था और x क्या था। y हमारे पास log टू द बेस 10k है, c हमारे पास log टू द बेस 10a है, और हमारे पास m क्या था, माइनस हमारे पास माइनस EA 2.303 r है, और x आपके पास क्या था 1/t, x हमारे पास यहाँ पे 1/t था। तो ये हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़रूरी जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि T1 और T2 और K1 और K2 कि आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स, अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बाद एक चीज़ देखने में आई है कि जैसे ही जैसे टाइम वन जो T1 है और इसमें इजाफा होता है T2 में, तो K1 में भी इजाफा होता है। तो बिल्कुल इस तरह ये प्रूफ है, ये चीज़ ये प्रूफ ये कि अगर फर्स्ट को T1 हमारे पास 25 है तो T2 में इजाफा जो होगा 10 के डिफरेंस से होगा, यानी यहाँ 25 सेंटीग्रेड होते हैं, कितना होगा 35 सेंटीग्रेड होगा, यानी इतना फर्क आ रहा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो K2 होगा जो हमारे पास K2 होगा, एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो चुका है, K2 जो होगा वो 2 के 1 के फर्क से आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब हमें तो नहीं पता, लेकिन इसका है कि उसमें 10 का डिफरेंस आ रहा है, यानी उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है, उसका जो रेट है वो 2 के डिफरेंस से बढ़ रहा है। तो ये अरहीनियस इक्वेशन था जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हमने इसमें ये सबसे पहले ये पढ़ा कि हमने रेट और टेम्परेचर में रिलेशनशिप पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि इनको नेचुरल लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको लॉग टू द बेस 10 में कैसे करते हैं, फिर हमने इसके 2 रिलेशनशिप पढ़े हैं, फिर हमने इसके 3 बेसिक फार्मूला पढ़े, और फिर एंड में हमने इसको ग्राफ को रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप सो कि आपने इस टॉपिक में से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।